Dear friends, this is Abhanan, and today we have the topic quadrilateral. This topic is very interesting and very amazing, and this is also important for every aspect for your examinations like 9th, 10th, 11th, 12th, JEE, and much more. So without delay, we are starting the topic. This topic is very important. So watch carefully. Each word, each sentence is very important. And one request, please, if this video or earlier video help you in any aspect, anyway, please like, subscribe and share as more as possible. Thank you. Without delay, we are starting the topic now. So this is class 9th, chapter 8, introduction to quadrilateral, and in same way this is part 1 because the video has no elaboration, that is why we have kept part 1, and the remaining part will be covered in part 2. तो क्वाड्रिलेटरल जैसे हम लोग देखे लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, ठीक उसी प्रकार ये तीसरा पार्ट है, अगर हम कह सके तो कह सकते हैं ज्योमेट्री का। तो ट्रायंगल में ट्राई एंगल मतलब तीन सीमेट कोई ऐसा फिगर, ऐसा सिमेट्री विच हैज 3 एंगल 3 साइड, दैट इज कॉल्ड ट्राई एंगल। इन द सेम वे क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड ऑल्सो दिस इज 4 साइड्स, a symmetry which has 4 surfaces lateral, that is called quadrilateral। तो हम लोग इसका देखते हैं, a polygon having 4 angle 4 side and 4 vertices, that is called quadrilateral। ऐसा फिगर, a symmetry, a figure which has 4 angles 4 sides and 4 vertices, this is called quadrilateral। Its property is angle sum property of quadrilateral is 360 degree। It means we can say that if we measure all these angle of a triangle of a quadrilateral, that measures 360 degree। इसको अगर हम प्रूव करना चाहें, अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो दिस कैन बी प्रूव्ड बाय डिवाइडिंग ए क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल। सपोज ADCB, ABCD, that is a quadrilateral। If AC is its diagonal, then by this diagonal this quadrilateral is divided into 2 triangle ADC and triangle ABC। तो 2 triangle, and as we know triangle measures 180 degree, and angle sum property of a triangle, we are knowing that this triangle angles measure 180 degree and this triangle angles measure 180 degree। If we combine both this triangle, if we add this to both this triangle, then it form a quadrilateral and its measurement is 360 degree। Now different type of quadrilateral, क्या क्या है different type of quadrilateral? The first one is trapezium। हम लोग we will describe trapezium। So one pair of opposite sides of quadrilateral are parallel। One pair of opposite sides of quadrilateral are parallel। It means we can say that in this figure this side and this side is parallel। One pair of opposite sides of quadrilateral are parallel, that is not parallel, this AB and DC is not parallel, but AD and BC is parallel। The second one is parallelogram। And now the second one is parallelogram। So we can say both opposite sides of quadrilateral are parallel। इसके both side, that is AB and CD is parallel and AD and BC is parallel। इसके कुछ properties हैं which is very important, people always ask question, examination always arises question from this point। तो opposite angles are congruent, मतलब ये कह सकते हैं इसमें कि ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट मीन्स वी कैन से दैट अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये पूरे अगर
एंगल को ले लें तो ये एंगल इसके एंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी हम लोग आगे इसके डेरिवेशन भी देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। एंड द सेकेंड वन इज एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एज वी नो दिस इज अ पैरेललोग्राम, if this angle and this side is parallel, so the measurement of this angle and this angle becomes 180 degree. So as we know that the both two angles having measure 180 degree, the first one is whether something, the second one its supplement if its measurement is 80 degree. The third one is diagonal bisect each other and each diagonal divide the parallelogram into two congruent triangle. इसके डायगनल्स ए सी एंड बी डी इज डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. इफ वी से triangle diagonal AC then ADC and triangle ABC is two congruent triangle. If BD is the diagonal then triangle DAB and DCB is two congruent triangle. If one of the angle of a parallelogram is a right angle then all other angle are right angle and it becomes a triangle. ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इस फिगर में कोई एक पैरेललोग्राम में एक एंगल मेजर्स 90 डिग्री देन इट्स ऑल एंगल will measures 90 degree, and in this way, in this condition, a parallelogram becomes a rectangle. Now rectangle, a quadrilateral having one angle measure 90 degree. As we have earlier told, if one angle measure 90 degree, it means all angles measure 90 degree. So a quadrilateral having one angle measure 90 degree, or we can say that having all angles measure 90 degree, that is called a quadrilateral. All angles measure 360 degree, each angle measures 90 degree. Its property is opposite sides are parallel and congruent. Opposite sides are parallel and congruent. Opposite sides are parallel and congruent. All angles are right angle. इसके हर angle right angle होंगे. The diagonals are congruent and bisect each other in equal parts. Diagonal जो हैं AC and BD is congruent and bisect each other. Same way as we have told earlier. A rectangle is a special type of parallelogram whose all angles are right angle. इसे हम कह सकते हैं parallelogram having all angles measure 90 degree. All angles is a right angle. And the next one is a rhombus. The quadrilateral having all sides equal. ऐसा कोई फिगर जिसके all sides equal हैं, बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि स्क्वायर भी हैं जिसके भी ऑल साइड्स इक्वल हैं. तो ये क्वाड्रिलेटरल हैविंग अभी हम लोग ये देखते हैं और आगे इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं. तो ऑल ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल दैट इज नोन एज रोम्बस. तो ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें भी ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं. द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर. दिस इज द मेन प्रॉपर्टी. डायगोनल्स हेयर रोम्बस, इन रोम्बस डायगोनल आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब एक दूसरे के जो डायगोनल्स होंगे बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर. एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दैट इज एंगल ए एंड एंगल बी इज 180 डिग्री. दिस इज दिस फिगर. The rhombus is a parallelogram whose diagonals are perpendicular to each other. We can say that a rhombus is a parallelogram when diagonals are perpendicular to each other. तो अभी हम लोग देखें कि diagonals are perpendicular to each other, all sides are equal, all sides ये all angles are congruent. तो ये सब इसके प्रॉपर्टी थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ स्क्वायर. तो अभी रोम्बस और स्क्वायर में हम लोग बताए थे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बट हेयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, एंड इन दिस स्क्वायर ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड मेजर्स 90 डिग्री. इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं एंड एंगल मेजर 90 डिग्री. हेयर दैट एंगल इज नॉट 90 डिग्री बट हेयर दिस एंगल इज 90 डिग्री. दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर. ऑल साइड्स एंड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इन द सेम वे. ऑल साइड्स एंड एंगल्स इसमें भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होंगे ईच अदर. एंड द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर. इसमें भी है डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर. ए स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल. अगर एक पैरेललोग्राम को हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं इफ ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल. If all angle and sides are equal, then we say that a square is as a that parallelogram as a square. A parallelogram became a square when the diagonal are equal and right bisector of each other. एक और प्रॉपर्टी है कि एक पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर तब कह सकते हैं
ये अगर ये प्रॉपर्टी द डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स उसके अगर इक्वल हैं एंड राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब ये अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री और डायगनल इक्वल हैं, देन वी से दैट पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर. And the last one is kite. This is also likewise rhombus, but it's that two adjacent sides, not that both side AD and AB is equal and DC and BC is equal. The quadrilateral having two pair of adjacent sides are equal and not a parallelogram. Then we can say that a quadrilateral, suppose this is a quadrilateral having two adjacent sides, this and this is the adjacent side, this is the adjacent side, are equal, these two are equal and these two are equal, but not a parallelogram. लेकिन ये parallelogram नहीं है. Then in this way we can say that is an example of kite. तो अब इससे हम लोग डिराइव करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं. तो द फर्स्ट वन इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलवेज टू बी केप्ट इन माइंड. फर्स्ट वन इज अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस. एक स्क्वायर को we can say this is a rectangle and or a rhombus, but some of the properties which we have already described. And a parallelogram is a trapezium. ये सब important है. अभी हम लोग ने बताया कि क्यों इसको ऐसे बोलते हैं. A kite is not a parallelogram. Kite cannot be say as a parallelogram. A trapezium not a parallelogram as only one side of opposite sides is parallel in trapezium and we require both pair to be parallel in parallelogram. A rectangle or rhombus is not a square. इससे हम लोग डिराइव करके कुछ डायग्राम निकालें कि अगर उतना कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ ऐसा है, तो ओनली ये अगर डायग्राम आप दिमाग में रखोगे, अगर ये दिमाग में है, देन यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर एंड यू कैन से यू कैन इजीली मेमोराइज रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स दैट इज इन दिस चैप्टर. तो इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड विदाउट डिले वी आर डिस्क्राइबिंग नाउ इट्स थ्योरम्स. तो हम लोग अभी तो यहाँ पे है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू congruent triangle. सपोज कर लेते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम. लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम. बी अ पैरेललोग्राम. AC its diagonal. AC is its diagonal. तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि AB एंड DC इज पैरेलल. AB पैरेलल टू DC, सॉरी CD. तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, AB पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल या डायगोनल. ट्रांसवर्सल लिखते हैं, ट्रांसवर्सल. तो इससे हम लोग क्या निकल के आएगा, अगर ये दोनों फिगर की बात करें, दोनों ट्रायंगल की बात करें, तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक उसी प्रकार एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड AC इज कॉमन टू AC. अब इसमें हम क्या करते हैं, नाउ ट्रायंगल ABC, सॉरी स्टार्टिंग में ये लिखते हैं इस ट्रायंगल को हम लोग, नाउ ट्रायंगल ADC
is congruent to triangle ABC, because here this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये जो है वो साइड दोनों में कॉमन है। तो हम लोग कर सकते हैं ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस से प्रूव हो गया दोनों ये। और जब ये दोनों कॉमन हो प्रूव जब हो जाता है तब इससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ए डी, अब इससे कंक्लूजन हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी सी इज इक्वल टू बी ए, और जब ये हो जाएगा तो फिर एस 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 से हम लोग ये भी प्रूव कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये दोनों जब ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तब हम लोग कह सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स। तो हम लोग कह सकते हैं प्रूव, इसी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दीज टू दिस इज द डायगोनल AC which divide the both the quadrilateral in two equal triangle, two congruent triangle। अब अगर हम लोग थ्योरम 2 की बात करें कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी हम लोग देखिए जैसे हम लोग दोनों कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, जैसे हम लोग फिगर में पिछले फिगर में ये किए प्रूव किए हैं, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। मतलब AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू CB या BC। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं बाय सिम्प्लिसिटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो एक थ्योरम देखिए पिछला हम लोग प्रूव किए हैं, उसी से सारा लिंक है, सारा कुछ उसी से अप्रूव्ड हो रहा है कि इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल तो इसके अपोजिट साइड्स ये और ये और ये और ये और ये बराबर होंगे। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, क्या कह रहा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब दिस पेयर एंड दिस पेयर, दिस अपोजिट साइड्स दिस पेयर, इन इस पेयर में इस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हम लोग तो ये प्रूव कर ही चुके हैं कि ये इसके बराबर और ये दोनों इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये आपस में दिया हुआ है कि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये जो है वो कॉमन हो गया। अगर इस फिगर की बात करते हैं, अच्छा थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, सॉरी। अगर ट्रायंगल ADC एंड इन ट्रायंगल ABC AD इज इक्वल टू BC एंड CD इज इक्वल टू AB एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन। अगर ये कॉमन है तो बाई एस कॉन्ग्रुएंस हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, और ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सिम्प्लिसिटी ये प्रूव हो जाएगा। और जब ये प्रूव हो जाएगा देन वी से दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया। ये देखिए इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें साइड दिया हुआ है, अगर हम लोग जैसे ये हम लोग देख रहे हैं कि अब इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स बराबर है। इसमें हम लोग पैरेललोग्राम में क्या देखते हैं कि अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड, तो ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अभी ने पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें देख रहे हैं कि अपोजिट एंगल, ये एंगल के बराबर, मतलब कहने का मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो जब हम ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे
तो ये आपस में इसके बराबर हो जाएगा। ठीक इन सेम वे अगर हम डी बी डायगोनल करें तो ये एंगल बिकॉज दिस AD and BC is parallel and AB and CD is parallel, so this angle अगर हम इधर डायगोनल की बात करें, ये अगर हम डायगोनल बना दें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल के बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए, सपोज ये x एंड बाई है तो x प्लस बाई, इधर भी ये x है तो ये x होगा, ये बाई है तो ये बाई होगा, तो x प्लस बाई इज इक्वल टू x प्लस बाई, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएंगे और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे देन वी से दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम। तो मुझे नहीं लगता कि इसको प्रूव करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ पहले जो पहला डायग्राम है वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया देन नो नीड टू एक्सप्लेन, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। और मुझे पता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली, वेरी इजली। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। कुछ नहीं है, हम लोग जैसे अगर आप लोग समझ गए हैं तो वेरी इजीली कैन सॉल्व इट। हम लोग हिंट देते हैं, हम इसमें हिंट देते हैं कि क्या करना है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि अगर अपोजिट एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, देन वी से दैट इज ए पैरेललोग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस फिगर में सपोज उसी को जैसे हम लोग कर रहे हैं कि AC अगर डायगोनल लेते हैं तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो AC अगर डायगोनल है तो हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं। AC डायगोनल कहने का मतलब है कि AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। ये दोनों बराबर है तो AC दोनों में कॉमन हो गया और इसके कारण से SSS बाई SSS शॉर्ट में हम लोग बता रहे हैं SSS कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर लिए। तो जहाँ जैसे ही हम लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए तो हम लोग अब कह सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC बाई CPCT। एंड वेन डायगोनल BD अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, BD में भी ठीक वैसे ही होगा, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। तो उस के हिसाब से फिर हम लोग बाई SSS से इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCD। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अभी ये आपस में बराबर हो गए, यही तो प्रूव करना है। क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये अपोजिट इक्वल बराबर हो गया, हम लोग प्रूव कर दिए हैं कि हाँ ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल मतलब ये B एंगल जो है ये B के बराबर है और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब हम लोग देखते हैं इस थ्योरम को। इसमें कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, सपोज A B that is C and this is D। तो इसमें कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स अगर AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार का है, कुछ नहीं है। दो ट्रायंगल को लेके हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है। सपोज कर ले रहे हैं ट्रायंगल, ये O मान लेते हैं, दैट इज O। तो ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, AOD एंड BOC, इसमें क्या है OD इज इक्वल टू OB, ये गिवन है। OA इज इक्वल टू OC
गिवन है एन एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इसे हम लोग कह सकते हैं साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, यहाँ COB है सॉरी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब हम लोग इसका किस में लिए थे, हम क्या लिए थे, ये और ये डायगोनल बराबर है। इसी प्रकार अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इसमें भी ठीक उसी प्रकार होगा। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। अब अगर हम ट्रायंगल AOD प्लस ट्रायंगल AOB को ऐड करें तो ये बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल COB प्लस ट्रायंगल COD, ये दोनों बराबर होगा, ऐड करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम उल्टा करेंगे, अभी ये बराबर हो गए, अगर हम इस कंडीशन में क्या है, AC को जब हम डायगोनल लिए हैं, सॉरी BD को जब हम डायगोनल लिए हैं, तब ये कंडीशन आया। अगर हम AC को डायगोनल लेंगे तो फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, एंगल ADC प्लस सॉरी ADO या फिर AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल क्या लिए, AOD ये और एंगल COD। ठीक है, तो एंगल AOB एंड एंगल COB, एंगल COB ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तब हम लोग कह सकते हैं कि मतलब किसी भी दो ट्रायंगल को, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये दोनों के बराबर है, ये दोनों जोड़ लेंगे ये दोनों के बराबर है। मतलब अगर इसको डायगोनल लेते हैं तो ये एंगल इसके बराबर है, और इसको जब डायगोनल लेते हैं तो ये एंगल इसके बराबर है। तो वी कैन से दैट ये डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। So one request again, if this video is helpful for you, please do like and subscribe this channel and share also. How much, how more as possible, please like, subscribe and share. Thank you. Very soon we will present with second video, it's part 2. Till please wait. Thank you.